شما بچه کجایی؟ بچه اصفهان. شما بچه کجایی؟ بچه هند. Oh, really nice. نصف جهان. نصف جهان मतलब कहते हैं अगर जिसने इस्फहान नहीं घूमा उसने आधी दुनिया नहीं देखी. अच्छा मुस्तकिम बुरु. This is so sweet, but actually kind of scary. How do you know this much version? I'm a spy. Oh my god, are you? Yeah. Isfahani, and what do you like about Isfahan? As it is in the center of our country, the weather is nice, always moderate. स्वागत कर देते हैं आप सभी लोगों का नए व्लॉग में. मैं हूँ अभी इस्फहान और फिर से दोबारा मुलाकात हो गई है. To Azin. Hi Azin, how are you? Hi again. Yeah, nice to see you again. Thank you. You too. Yeah. So. Wow, this is the beautiful place here. Thank you very much for coming. Oh no. And I'm also sorry, you know, like It's fine. you came 10 minutes before. कई बार ऐसा होता है वो हॉस्टल वाले दिक्कत कर देते हैं. तो उन्होंने बताया नहीं रात को, अब सुबह बताया कि रूम चेंज करना है. You understand Hindi? Bit? No? No. I mean, you used to some little things that we have some things in common. Yeah. Maybe I can sometimes get the point, but not always. Okay. Most welcome to Isfahan. Yeah, thank you so much. You are welcome. If Yeah. you don't mind, I invite you and your friend for a cup of friendly tea. I have a small gallery here. Yeah, we Would you like to drink tea? we just arrived here, so As you like. I just want to invite you for free tea because I make fresh tea, saffron tea. it's you really we are pleasure to that you asked us. तो ये जो पूरा आप बड़ा सा स्क्वायर देख रहे हैं, this is नश के जहान स्क्वायर, right? नक्श जहान. Sorry यार, It's ये fine. मैं अजन से जब पहले मिला था तोने का बान में, ये एक्चुअली यहीं इनका जन्म हुआ है इस्फहान में. तो इस्फहान के बारे में इनसे ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है. वाओ. तो आप एक्सप्लोर करेंगे जी भाई इस्फहान को. सबसे पहले हम आ गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर. तो ये बहुत ही बड़ा स्क्वायर है. दिस इज वन ऑफ द what? लार्जेस्ट स्क्वायर इन द वर्ल्ड. Oh, I didn't know that. And that part was for himself. Okay. Staying there, and it was some carpets there to cover himself, but he could just see these places here. Okay. So, अगर हम बात करें इस्फहान के बारे में, तो ये जो पूरी सिटी है ये आपकी सफाविद एम्पायर के टाइम पे फला फूली थी. 1501 से लेकर 1636 तक ये सफाविद एम्पायर चला था. और जो अब्बास जो थे, शाह अब्बास, उनके रूल में काफ़ी मतलब इसको डेवलप करा गया था, काफ़ी इसको ब्यूटीफुल बनाया गया था. तो आप देख सकते हैं. I mean, Isfahan is just so famous by its blue temples, right. but just this one is the only one that the color is different. Yeah. We call it khaki, like Khaki. We yeah. also say khaki, you know, in Hindi. Yeah, I don't know it. Yeah, we also but- say khaki in Hindi. In general, for me, also I like the blue and white combination. Yeah. For me, it's my best combination. And you are But also this is wearing like light blue and, today. Yeah. You're So totally Ishfani happy today. to hear that. Yeah. Yes. As Shah Abbas was so religious, at his time he actually announced that Shia religion, Official religion. would be the official. And Shah Abbas की जो capital थी पहले Qazvin में थी, and then he moved his capital from Qazvin to Isfahan. Yes, Yeah. yes. And I don't know if you have visited there. Qazvin, no, I haven't We visited have there. some places in common actually. Okay, Or the Pakka. names. Wow, that's great. Yeah, like oh my god, I just totally forgot everything. इनके पिताश्री को भी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अजिन जी के. तो ये बता रही हैं कि ये जो मॉस्क है, तो जो शाह अब्बास के टाइम पे जो शाह अब्बास वाइफ्स, राइट, वाइफ्स एंड वुमेन्स, अदर वुमेन्स, Yeah, I can tell. तो जो वैसे जो वाला जो दैट इज अली कापू, वो अली कापू पैलेस है. तो जो औरतें थी वो सब इसके ज़मीन के नीचे से आती थी ताकि उन्हें कोई देखे ना. वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा मर्द उन्हें देखे, तो नीचे ग्राउंड से आती थी या मस्जिद में प्रे करने के लिए. इफ देयर इज मोरालिटी पुलिस, I would get arrested. you will get arrested if you Or don't wear. I was being warned to wear hijab or something. Oh, Yeah. if the police is around.
Yeah. This. ये जो आप जितनी यहाँ पर छोटे छोटे मतलब स्पेस देख रहे हैं, तो ये सारी यहाँ पर दुकानें बनी हुई है लाइन से। तो देखो, हर मुझे लगता है करीब 250 से 300 यहाँ पर दुकानें बनी होंगी, तभी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्क्वायर है। ऐसे ही नहीं, इसको लार्जेस्ट स्क्वायर बोल दिया गया है। Oh my God. और इसके अंदर भी यहाँ से भी बाजार निकलता है। ये मॉस्क है, तो यहाँ से भी बाजार जा रहा है, तो बाजार देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस्फहानी होने के नाते क्या इन्हें पसंद है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट इस्फहान? As it is in the center of our country, the weather is nice, always moderate. But as it is so industrial, it is so polluted. So Because of industry, it's polluted. yeah, it's so polluted. And as it is dry, the pollution just always come down and again go up, something like that. But the place is so really nice actually, and the municipality designed it in a really clean way. Yeah. So beautiful. Yes. This is the everything best should- combination, blue and white. Yeah. So the blue and white, especially from Isfahan. Yeah, it's from Isfahan. Even your eyes are also blue today. you became My totally, eyeliners. totally Isfahani. Yeah. Right? Sorry? The blue, the special blue is Firuze. Yeah, Firoze. We also say in Hindi, Firoze. Firuze. Yeah. We call it like Isfahan is شهر گنبدهای فیروزه‌ای. शहर गुम्बत फिरोजे। Yeah. फारसी खेली आसान است. Oh my god. Yeah, as compared to other languages. But actually, Yeah, I you're know. so smart. I Or- know a bit Japanese also, but I think You know Japanese. Oh Yeah. my god. I'm You already know too much. language enthusiast. I love learning new languages. Yeah. Yeah. What did he tell you? He actually offered this Mirror to you. to me to take a picture. There is no competition for the art of Iran. Our previous religion that we have. Yeah, this is Faraha, and as you can see, this is like a ring Yeah. for freedom, and this Yeah. is while he's praying to God, something. And as you can see, it has three Good wings. deed, good thought, good word. Zoroastrianism. पहले का फ्लैग था पहलवी डायनेस्टी के दौरान, रेजा शाह के दौरान, बिफोर And द Muhammad Reza, before the revolution. बिफोर द ईरानियन रेवोल्यूशन। भाई सब कुछ डिजाइन बना रहे हैं अभी। ये फाराहार का फारावहार Farvahar, yes. फारवहार का डिजाइन। Bene. ये फाइनल, This is it. दिस इज द फाइनल। artwork. वाओ, दिस इज द ब्रॉन्ज, वेरी ब्यूटीफुल आर्ट। तो ये यहाँ पर भाई जाफरान बिक रहा है, केसर बिक रहा है। ये वाला है 10 ग्राम $30 का, करीब आपके 2400 रुपये पड़ गए। और ये आपका करीब 10 ग्राम है 3000 या 3200 रुपये का 10 ग्राम है। ये बेच रही हैं यहाँ पर अलग अलग सेफ्रॉन। ये अंडे देखो। Really, dinosaurs eggs? No, not really. Yeah, I was just thinking ostrich eggs. Dinosaur this eggs are is more an bigger than ostrich this. egg. Yeah, it's वैसे ये पूरा नक्शे जहान स्क्वायर ही काफी बड़ा है, तो करीब आपको 1.5-2 घंटे लगेंगे या ज्यादा भी लग सकते हैं। पूरा अच्छे से आप घूमोगे। वी केम फ्रॉम देयर, हम यहाँ से आ गए बाहर। एंड हियर इज अनदर ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। At this time, he just wanted this entrance to be as special and natural as it can be. So, final days of his kingdom, actually, something happened. I mean, he couldn't make it to the end, and as you can see, this part, just Yeah. this part, is just made of tails, Yeah. made ones. Okay, But so these three, yes, are the the real ones. real But one. This another is the- one is just like a fake one. like a fake one. Okay, Yeah. वो हम देख सकते हैं भाई, ये थोड़ा डल है। He couldn't ये हाँ, ये डल है जो कि अब्बास जी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और बाकी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है। इट्स मोर ब्लू, मोर फिरोजिया। वैसे इस्फहान को बोलते हैं हाफ ऑफ द वर्ल्ड। वैसे पर्शियन में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इनसे सुनना चाहता हूँ। सो हाउ डू यू से इन पर्शियन हाफ ऑफ What? द वर्ल्ड? Nesfe Jahan. निस्फ जहान, मतलब कहते हैं अगर जिसने इस्फहान नहीं घूमा उसने आधी दुनिया नहीं देखी। इस्फहान भाई फेमस है अपनी हिस्ट्री के लिए, खासकर भाई सफाविद एम्पायर के टाइम में जितनी हिस्ट्री यहाँ पर डेवलप करी गई थी, वो सिटी का गोल्डन रूल था 1501 से लेकर 1636 तक। अमेजिंग टाइम था वो। بگیره بله متشکرم लाइन से यहाँ फोटोग्राफर्स बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए। और उसे मोचाकर متشکر Means- is like متشکر मुझशक्र। It is Arab.
अभी देखो ये काफी सारे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं. These all are school students. Yeah, high school. High school and Common uniform, as common you can uniform. see. Yeah, the dark navy blue of Yeah. hijab for all the girls, right? Yes, yes, And till 12th class, the girls and boys separate. yes. Yeah. And after college, Hard. काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर हो गई है बच्चों की. काफी अच्छा लग रहा है. So they are taking the pictures from here. अब ये देखो ये इस प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं. इनका ड्रेस कोड में पिंक हिजाब है. For the primary girls, it's pink, right? Yeah, kind of. I mean, like light and colors Yeah. like this, or light yellow, light blue, something. Light blue. Huh? Yeah. इस ट्री का डिजाइन देखो आप. अलग ही शानदार है. बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर से काट दिया है क्या है. लेकिन ये स्क्वायर काफी ज्यादा बढ़िया है. आप यहाँ पर भाई अपना चाहो तो पूरा दिन भी बिता सकते हो. मतलब आराम से आप गार्डन में बैठो, कहीं बैठो. कितने सारे यहाँ पर बीच बीच में गार्डन बने हुए हैं. But he's Indian. Say it in Persian. सलाम. हाल शुमा चतोरे. سلامت باشی कुर्बान शुमा. سلامت باشی Taj Mahal. Yes, Taj Mahal. What those guys were thinking about you? They felt like I'm from, I don't know, any place except Iran. And he Okay, said, bye bye. खुदा हाफिज. शुमा बच्चा खुजाई. بچه اصفهان شما بچه کجایی؟ बच्चा हिंद. Oh, really nice. Really बच्चा मुस्तकिम बुरु. This is so sweet, but actually kind of scary. How do you know this much Persian? I'm a spy. Oh my god, are you? Yeah. ये देखो कुछ घोड़े गाड़ी हैं यहाँ पर काफी खड़े हुए हैं जो आपको यहाँ का पूरा टूर कराएंगे. So अब ये पुलिस ऑफिस यहाँ से पास में आ गया है. When the police come, We should just run. we should. Run. This bazaar is Qaysariya bazaar. अब ये नक्शे जहान स्क्वायर पे ही हैं हम. स्क्वायर देखो काफी बड़ा है. ये खत्म ही नहीं होता है. कितना भी घूम लो. तो एक और यहाँ पर बाजार बना हुआ है तो इस बाजार के अंदर भी चलते हैं. बाजार घूमना तो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है. This is like mento, huh? Yeah, manto we call it. Mento. Like some longer shirts. Yeah, longer And, shirts. Yeah, that they just cover our buttocks and things. Okay. Their sleeves should be like this. Uh-huh. But you can see people are, I don't know, wearing so many kinds of it. And this is like your official dress also, right? Could be. Yeah. नवादा पंच मतलब करीब $1.5. हाँ? No, हिंदुस्तान. सलाम. अब सिचुएशन ऐसी है. बाजार घूमते घूमते ये मिली हैं आंटी जी. इन्होंने इनवाइट करा है अजिन को. हम किसी इनके ट्रेडिशनल हाउस में जा रहे हैं. कह रही हैं कि चलो हमारे साथ. सो शी वाज इंसिस्टिंग यू. Yeah, for having an interview. Interview? Whose interview? With her son, who is the owner of a institute. I don't know, in translation institute or something. I just don't know. Okay. But So it's like an opportunity for you. yeah, Job she's opportunity. just encouraging me Yeah, okay, okay. for doing. ईरान की कारपेट्स का तो वैसे भी आपको पता है कोई तोड़ नहीं है. इस्फहान में भी अच्छी अच्छी कारपेट्स आपको मिल जाएंगी. आपको वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा बाजार दिखा रखे हैं और यहाँ से देख रहे हैं इधर भी एक ओपनिंग है, इधर भी ओपनिंग है ठंड के लिए. वैसे बाजार का डिज़ाइन भी इस तरीके से बनाया जाता है ताकि ठंडक रहे और अंदर सही में टेम्परेचर कम हो जाता है. इनका आर्किटेक्चर इस तरीके से डिज़ाइन है. This is a, as you said, Hammam. Yeah, like a traditional hammam here. Like it's public, you know. Like a public hammam. Only for the boys? Yes, of course. Only boys can go there. I think yes, but now it's just tend to be a museum. Oh, it's a museum. It's What do you think about my Persian? really great, really Really? great. I mean, you just went so far, so fluent. Really? Yes, really, I'm so proud of you. Okay. वैसे आप किसी भी ईरान की जगह पे घूम रहे हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ पॉपुलर होता है. तो अगर इस्फहान की बात करें तो इस्फहान भाई कारपेट्स में, टेक्सटाइल में, आपका हैंडीक्राफ्ट्स में और जो ट्रेडिशनल फूड है स्पेशली स्वीट्स इस्फहान की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. वैसे देखो कारपेट्स तो फेमस हैं ईरान की. अगर हम बेसिकली अगर इस्फहान की कारपेट्स की बात करें तो इस्फहान की रग्स बहुत ज़्यादा फेमस है. मतलब दरी, रग्स को आप दरी कह सकते हैं और जो बनती है आपकी सिल्क से और मेरिनो वूल से. मेरिनो एक टाइप की शीप होती है तो बहुत ही सॉफ्ट होती है वो, तो उससे बनाई जाती है. तो वो काफ़ी पॉपुलर है इस्फहान में.
खुजा मेरी, کجا میریم؟ ये है खुजा मेरी। کوچه حکیم. دیگه अब हम चलते चलते काफी दूर आ गए हैं। She told you it's like just going through an interview, but I don't really think like it. there is something else, I guess. Something fishy. खुशकिल is मुश्किल. Oh my god, you know too much. So where are we? करीब 6-7 मिनट की वॉक के बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। शायद इनका घर भी है और कैरी इंस्टीट्यूट भी है। बेफाम। वैसे इस्फहान स्टील के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा स्टील इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, और इन भाई साहब का भी ऑफिस जो है ये स्टील की कंपनी है, और ये कह रहे हैं कि इंडिया से भी सामान लेते हैं रॉ मटेरियल्स, तो इनकी पूरी ये प्रोफाइल है। काफ़ी इन्होंने शानदार ऑफिस बना रखा है और ऊपर की नक्काशी आप देख सकते हैं इनकी फ्लोर की, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। वैसे कोर्टयार्ड रखना तो इनके ट्रेडिशन में ही है पर्शिया के। आपको कुछ ट्रेडिशनल हाउसेस जो हैं पुराने, इवन अभी भी नॉर्मली घर में लोग बना लेते हैं कोर्टयार्ड वगैरह। काफ़ी बड़ी टीम इनकी लग रही है, देखें पूरी नेटवर्किंग की टीम बैठी हुई है सारी यहाँ पर। काफ़ी ब्यूटीफुल ऑफिस बना रखा है यार, ऑफिस भी पूरा ट्रेडिशनल है इनका। सो दे वर ऑफरिंग यू अ जॉब। Yeah, they were offering me. How much to man? Million? I don't know. I just said like I'm in a rush and I will Visit set again. a time again. A meeting, Yeah, huh? yeah, I tell. Okay, that's good. Yeah, but I don't really care. All the best. Okay. So that was again so nice to see Yeah. you. Me I too. hope you will enjoy for the rest. Yeah. Welcome you to India. Come someday, okay? Thank you. I wish I can. Yeah. I will. I will. Tashakkur. schedule it. Kheli mamnun. خواهش میکنم. See you again. Yeah, see you. Bye bye. वैसे चाइना का भी ट्रेड काफ़ी अच्छा है ईरान के साथ, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको चाइना की आइटम भी यहाँ पर मिल सकता है। वैसे चाइनीज़ बिजनेसमैन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं ईरान में, तो मुझे लगता है जो खासकर भाई जो सिरेमिक है, पोर्सिलेन है, चाइना वैसे भी एक्सपर्ट है बनाने में, तो मे भी शायद हो सकता है। वाह यार, ये छोटे छोटे आइटम्स कितने ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। घोड़े की नाल को नज़र के लिए यहाँ भी यूज़ करा जाता है। लोग अपने घरों के या तो ऊपर टांग देते हैं, ज़मीन पे भी लगा देते हैं। कुछ पुराने हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ यूनिक डिज़ाइन के मेंस के पेंडेंट्स, कुछ फीमेल के भी लग रहे हैं। अब ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इस्फहान फेमस है अपनी पर्शियन रग्स के लिए, मतलब दरी के लिए, लेकिन जो इनकी दरी है वो भी ख़ास मटेरियल से बनाई जाती है, सिल्क से और मैरीन वूल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रग्स हैं, तो बेसिकली रग्स दरी को बोलते हैं। जो शिराज की रग्स है वो किलिम होती है, वो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन ये आप देख रहे हैं पतली पतली ये रग्स हैं यहाँ पर। तो ये कुछ सिल्क की भी हैं, कुछ वूल की। मुझे ये वाली तो वूल की लग रही है, बाकी इनसे पता करते हैं कि सिल्क की कहाँ पर है। सिल्क रग, सिल्क सिल्क ना, No, this silk. This is Ankara. स्टैम्पिंग, This wood. वुड, Or wood. हाँ। वैसे इनके पास सारी कॉटन की हैं, एब्रेशॉन ना दोरी। ना ما فقط نخ. हाँ, तो अभी इनके पास सिल्क वाली नहीं है, Silk no, cotton. सिर्फ कॉटन की यहाँ पर रग्स हैं इनके पास। वैसे तो स्टोन्स हैं, वो बेसिकली मशात की ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन यहाँ भी मैं देख रहा हूँ इस्फहान में इस गली में काफ़ी सारे मेंस की जो है अंगूठियाँ मिल रही हैं, तो आप यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं मेंस की अंगूठी अगर आपको शौक है खरीदने का। मैं इस दुकान में आया हूँ तो इनके पास यहाँ पर एब्रेशॉन मतलब सिल्क की रग्स बनी हुई हैं, जो कि दरी आप कह सकते हैं, जो टेबल वेबल मतलब डाइनिंग टेबल पे लगाते हैं वैसे लगाते हैं। देखो ये सिल्क की हैं, काफ़ी इसका प्यारा डिज़ाइन है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। हिंद, ईरान है एब्रेशॉन? No, it's from Pakistan. पाकिस्तान एब्रेशॉन है, तो पाकिस्तान से आती है सिल्क इनके पास। गुड। या तो ये कॉटन की है इनके पास, लेकिन जो मैरीन वूल है वो एक टाइप की शीप होती है, उसकी नहीं है, लेकिन डिज़ाइन अच्छे हैं सर। ये वाला चेस्ट पीस देखो आप, ये सनंदाज में मैंने देखे थे, अलग अलग चेस्ट पीस होते हैं, काफ़ी फेमस है सनंदाज उसके लिए। ओ भाई यार, इनकी दुकान देखो यार, अलग ही एंटीक से भरी पड़ी है। खेल ही बिस्से हो रहा।
कितनी बड़ी बड़ी रिंग्स हैं। 95 रुपए का जोड़ा मिल रहा है चप्पलों का। इन भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं इस्फहान से शिराज जा रहा था। मैं शिराज गया था पहले, फिर वापस आ गया था शिराज से इस्फहान। तो अभी हम जा रहे हैं शायद हुक्के के लिए। मुझे हॉस्टल से इन्होंने पिक करा है अभी जस्ट। शाम के 7 बज रहे हैं और अभी थोड़ा आप देखेंगे कि भाई रात को इस्फहान कैसा दिखता है। द हाउस ऑफ इस्फहान नाइट्स। तो ये हुक्का है भाई, ये सिनेमॉन फ्लेवर का हुक्का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कितने सारे यहाँ पर सिटिंग लगी हुई है हुक्का की। पूरे लाइन से करीब 10-12 यहाँ थोड़ा मतलब आराम से बैठ के हुक्का पीने का ये सोफे वाला स्टाइल है यहाँ पर। तो वही हुक्का इनके अच्छा खासा कल्चर में है, लोग एंजॉय करते हैं हुक्का पीना साथ में चाय की। इसमें चीनी पहले से डाल दी इन्होंने। ये पता नहीं इनका ये पिज़्ज़ा है क्या है, ये तो मुझे आलू सा लग रहा है। ठंड में यार अगर आइसक्रीम ना खाओ तो क्या मज़ा। वैसे भी यहाँ के लोगों को काफ़ी शौक है भाई। अभी टेम्परेचर गिर के 12 डिग्री हो गया है करीब। गाड़ियाँ भी काफ़ी यहाँ पार्क हो रखी हैं। और ये आ गए हैं खाजू ब्रिज पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रिज है ये। देखो कह रहे हैं जो पानी था जैंदा रिवर का वो यहाँ से सब निकलता था। अगर आप मैप में देखेंगे ना तो आपको पानी दिखेगा यहाँ के ना खाजू ब्रिज के, तभी ये ब्रिज बनाया गया था। सोचो यहाँ पर अगर पानी होता तो और कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन अब ये सब ड्राई हो चुका है, मतलब सूख गया है सारा यहाँ का नदी का पानी। रात की वही सिटी अलग ही होती है, देखने वाली होती है। ये देखो भाई लाल रोशनी से कितना शानदार लग रहा है ये पुल का रास्ता। छोटा पतला रास्ता जा रहा है, ये बालकनी है यहाँ से, फिर ये बड़ा रास्ता है। ये देखो लगे इंटरेस्टिंग सिस्टम चल रहा है उधर, हुक्का पानी चल रहा है उधर लोगों का, पूरे लाइन से बना रखा है उन्होंने। आज की वाइब ही अलग है भाई हॉस्टल की। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और 3-4 लोग पाकिस्तान से भी आए हुए हैं। इनकी बाइकें देखो खड़ी हुई हैं यहाँ पर, अलग ही माहौल चल रहा है। ये बैठे हुए हमारे देवाशीष भाई। कैसे हो? मुझे लग रहा हम चेकआउट करके चले गए शायद। ये रामफल है, रामफल। नहीं तो हाँ रामफल है, परमिशन। भाई थोड़ा शर्मा रहे हैं कैमरे में आने से, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, कोई इंडियन भाई मिला, सही में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो थोड़ा इंट्रोड्यूस करो अपने बारे में। मेरा नाम देव है और मैं उड़ीसा से हूँ। और मैं क्या बताऊँ, तकरीबन 3-4 महीने पहले से ही मैं ईरान जाने की प्लान कर रहा था। अच्छा। लेकिन क्योंकि जो सिचुएशन पता है अभी कैसा है, तो आए दिन एक अजीब अजीब न्यूज़ आती है, तो मन में थोड़ा थोड़ा डाउट तो रहता ही है। अच्छा। तो लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके टिकट तो बुक कर ही ली। वो सोचा कि जो होगा देखा जाएगा ना, तो लास्ट में कुछ सिचुएशन खराब रहा तो निकल जाएंगे, कैंसिल करेंगे कि जो लॉस होना हो जो देखा जाएगा। लेकिन हिम्मत आपने हाँ, बनाई। लेकिन देखो हिम्मत भाई करके टिकट मत करवाई ही मैंने। बहुत ही बढ़िया। देखो आप भी ऐसे ट्रैवल करो कहीं भी, देखो अगर सिचुएशन होती है देखो हल्की फुल्की रहती है, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं तब आपको इंटरनल न्यूज़ पता लगती है। और ईरान इतना बड़ा है देखो, और इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होती चीज़ें, है क्यों नहीं? तो ट्रैवल करो यार, घूमो, ईरान आओ, बढ़िया जगह है। और उसके बाद फिर लव भाई का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि टिकट्स करने के बाद में जब दिन नज़दीक आने लगे टेंशन और बढ़ने लगी कि कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो फिर ऐसे ही फिर 1 हफ्ते के तकरीबन पहले मैंने फिर ऐसे ही मतलब क्या सिचुएशन है, कोई करेंटली कोई अभी घूम रहा है कि कोई करंट सिचुएशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सके, ऐसा कुछ यूट्यूब में मैं ढूंढ रहा था। तो तब मुझे लव भाई का चैनल मिला। चलो भाई बहुत बढ़िया। वो उसी समय छोड़े रहिए, बने रहिए। उसी समय शायद वो ईरान ट्रैवल कर रहे थे, और वो उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया कि
वो जिस दिन अटैक हुआ था उसके अगले दिन ही वो अफगानिस्तान से ईरान एंट्री किए हुए थे, तो उनको देख के मुझे और हिम्मत आई कि चलो भाई ये बंदा अगर जा पा रहा है तो मैं भी जा ही सकता हूँ, कुछ क्या ही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।